Yes, good morning children. In the continuation of the capacitor problem, now today we are taking the lecture 5. See the figure, this we have done with the simple method. This question we have done already with the simple method, and this is the NCERT problem. So just see the solution of this problem with the help of the charge distribution. हम लोगों को दोनों मेथड आने चाहिए जिससे कि कभी कोई अगर एक मेथड से ना हल हो पाए तो दूसरा मेथड हम लोग इस्तेमाल कर लें. इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैंने आपको बता दिया है, जबकि वो कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने इसको डिस्कशन किया है. ये दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखिए ये दो C2 और C3 आपके सीरीज़ में हैं, बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है. इसके बाद तो ये मैंने दूसरा जो फिगर बनाया है C2 एंड C3 दे आर इन सीरीज़. फिर जो आएगा वो C1 के पैरेलल में होगा और फिर C4 उसके सीरीज़ में होगा. मेरे ख्याल से ये इतना तो पहले भी क्लियर था. और इसमें जो है एक्स वाई के अक्रॉस वी आर हैविंग द 300 वोल्टेज. नाउ ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस. तो ये C4 है तो यहाँ पे प्लस Q4 आ जाएगा, माइनस Q4 आ जाएगा. ये C1 है तो प्लस Q1 और माइनस Q1. C2 है तो प्लस Q2 माइनस Q2 और C3 है तो प्लस Q3 और माइनस Q3. तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज विल डू. और यहाँ पे इसके क्रॉस V2 और ये V3 और ये इसके क्रॉस V4 और ये V2 और V3 मिल करके टोटल पोटेंशियल V. क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा. नाउ अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट द पॉइंट B. देख लीजिए B पॉइंट कहाँ पे है. B से चलना शुरू करिए. पहले आपको मिलेगा प्लस Q1, फिर इधर से चलेंगे तो प्लस Q2 मिल जाएगा और अगर इधर जाएंगे तो माइनस Q4 मिलेगा. दैट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. माइनस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 माइनस Q2. अब आ जाइए इधर से. तो अगर इधर से चलते हैं तो माइनस Q2 और माइनस Q3, माइनस Q2 और माइनस बंद कर दो ज़रा सा. हाँ, यहाँ पे फिगर में देख लें C2 और C3 के बीच में देखें माइनस Q2 फिर प्लस Q3 इज इक्वल टू 0. तो इससे आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू Q2, यानी कि Q3 चार्ज और Q2 चार्ज जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन द C2 एंड C3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ चूज द पाथ अलोंग द पाथ X, A, B, C1, C and Y. तो Q4 upon C4 plus Q1 upon C1 is equal to 300 volt. And it is given in the picofarad. So Q4 upon 100 into 10 to the power minus 12 plus Q1 upon 100 into 10 to the power minus 12 is equal to 300. Solve it, you will get Q4 plus Q1 is equal to 3 into 10 to the power minus 8. This is the equation number 3. Now take another path along path X, A, B, C2, C3, C and Y. तो इसमें आ जाएगा आपका Q4 by C4, Q2 by C2 plus Q3 by C3 is equal to 300 volt because the voltage is the same in between X and Y. इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी 2Q4 plus Q2 plus Q3 is equal to 6 into 10 raised to the power minus 8. This is the equation number 4. From second and 4 with the help of the, because Q3 is equal to Q2, तो यहाँ पे Q3 की जगह Q2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2Q4 plus Q2 is equal to 6 into 10 raised to the power minus 8, and this will become 2Q2. तो 2 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा and the final equation is Q2 plus Q4 is equal to 3 into 10 to the power minus 8. This is the equation number 5th. Now with the help of now subtract the equation number 1 from the third equation. So we can easily subtract. You can see here the simple mathematics.
So after subtracting, we'll get the equation 2q4 minus q2 into 3 into 10 to the minus 8. This is the equation number 6th. Now add the equation number 5th and 6th. ऐड करने के बाद हमें q4 की वैल्यू इजीली हमको मिल जा रही है, दैट इज 2 इंटू 10 to the minus 8 कूलम्स. इसी तरह से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3rd q4 प्लस q1, इस इक्वेशन से substitute the value of q4 and find out the value of q1 very easily. And similarly from the equation number 1, q1 plus q2 minus q4 is equal to 0. So q2 is equal to q4 minus q1. Substitute the values, here you will get again the value of q2, and q2 and q3 both are equal. So from the equation number 2nd, so the value of q2 and q3, it will be the similar value, यानी कि 1 into 10 raised to the power minus 8 coulombs. Now find out the potential. V1 is equal to Q1 upon C1, V2 is equal to Q2 upon C2, V3 is equal to Q3 upon C3, V4 is equal to Q4 upon C4, and C equivalent is equal to Q4 upon V, or we can take the C is equal to Q1 plus Q3 upon V. Either you take this formula or you take this formula. From both the ways you will get the C equivalent, and that is coming 2 by 3 into 10 to the minus 10 farad. Now see the another question. Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to half Q into E, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor 1 by 2. जनरली ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि 1 by 2 फैक्टर क्यों आ जा रहा है. नाउ लेट अस सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. W is equal to force into small displacement delta x, and W is equal to U into delta V. Small u is the energy density and delta V is the increase in the volume of the capacitor. So delta V is equal to area and delta x. वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होनी चाहिए, तो एरिया में 2 डायमेंशन हो गई, और डेल्टा एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम. सो W इज इक्वल टू U इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी है W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू U इंटू ए. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. नाउ वी नो दैट the energy density of the parallel plate capacitor is equal to half epsilon naught into E square. इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर लें. F is equal to half epsilon naught into E square into A. तो half epsilon naught into A into E, और A की बाहर ले लेंगे. यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज़ किए हैं. E is equal to V upon D, C is equal to epsilon naught A upon D, and Q is equal to C into V. इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें सब्सटीट्यूट करके वी आर गेटिंग द हाफ सी वी इंटू ई एंड सी वी इज इक्वल टू क्यू. तो दिस इज ई इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू ई. नाउ इन साइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई होगी, एंड आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. यानी कि आउटसाइड द प्लेट्स, कैपेसिटर के बाहर की प्लेट्स के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. इसीलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू लेंगे. जब एवरेज वैल्यू लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1 by 2 E हो जाएगी. दैट इज वाई दिस हाफ फैक्टर इज बीइंग इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3rd. इफ द कूलम्ब्स लॉ इन्वॉल्व 1 upon r cube डिपेंडेंस instead of 1 upon r square, would Gauss's law will still be true? Now if Coulomb's law involved 1 by r cube dependency, then the Gauss's law would not be true, because the Gauss's law is the another method for finding out the electric field in the different situation. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स 1 upon r cube की डिपेंडेंसी रखेगा तो गॉसेस लॉ ट्रू नहीं हो पाएगा. गॉसेस लॉ ट्रू तभी होगा जब ये 1 upon r स्क्वायर की डिपेंडेंसी रखेगा, क्योंकि गॉसेस लॉ और कुछ नहीं है, केवल एक दूसरा मेथड है फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस.
एक बी ले लेते हैं. What is the work done by the field of a nucleus in a complete circular orbit of the electron? What if the orbit is elliptical? देखिए सर्कुलर ऑर्बिट भी क्लोज सरफेस होगा और इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी वो भी क्लोज सरफेस होगा. तो दोनों ही केस में वर्क डन बाय द फील्ड जो है वो दैट विल बी जीरो बिकॉज बोथ आर द क्लोज सरफेस एंड वी नो दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ फॉर द क्लोज सरफेस E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो. सी देख लीजिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकॉन्टिन्यूअस, कभी कभी पूछा जाता है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? नो, द आंसर इज नो. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकॉन्टिन्यूअस लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस रहेगा. एक सिंगल कंडक्टर के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विल इट बी ट्रीटेड एज द कैपेसिटर, तो हम यस, तो हमारा आंसर यस में होगा. हम ऐसा कह सकते हैं कि कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर विल बी ट्रीटेड एज अ कैपेसिटर whose another plate is at infinite distance. यानी कि सिंगल कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो भी एक कैपेसिटर की तरह से काम करेगा जिसकी कि दूसरी प्लेट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इट इज हैविंग द परमानेंट डायपोल मोमेंट जबकि वॉइल माइका इज नॉट. तो इसका वाटर का परमानेंट डायपोल मोमेंट है और ये बहुत सबसे अधिक भी है, दैट इज द 80. अच्छा, कभी कभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट किया है इस सर्कुलर रिंग की वजह से, तो इसके वजह से पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस सर्कुलर चार्ज रिंग. तो डी वी इज इक्वल टू 1/4πε0. डी क्यू इज द चार्ज इन द स्मॉल एलिमेंट ए बी, ये डी क्यू आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका √r² प्लस x². टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी वी. तो सिग्मा डी वी कर लेंगे तो ये डी क्यू कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा. सिग्मा मीन्स द समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस. तो कैपिटल क्यू हो गया और क्यू अपॉन आर होता है तो आर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता था r², तो ये अंडर रूट हट जाता था, लेकिन पोटेंशियल में क्यू अपॉन आर ही रहेगा. तो r की वैल्यू √R² प्लस x². सो नाउ टुडे दिस इज द लास्ट लेक्चर चिल्ड्रन ऑन द कैपेसिटर, यानी कि फर्स्ट यूनिट वी हैव फिनिश्ड टुडे एंड फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स विल बिगिन द यूनिट नंबर 2, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस एंड EMF. यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 मिला करके आपका 15 मार्क्स कंप्लीट होगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन.